Good morning, guys. So last lecture, I guess we ended with question number 16. 16 नहीं, I guess we did what? Question number 17 complete किया हम लोग ने. So we'll go ahead with question number 18. Chapter Capital Budgeting. Question number 18. Ready with your books? First, X Limited, an existing profit-making company. Underline the word exactly, existing profit-making company. So this is already an existing profit-making company, guys. Tax implication calculate करने में मजा आएगी. Is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. Initial cost of the equipment will be 120 lakh and additional equipment costing 10 lakh will be needed at the beginning of the year 3. मतलब हमें यहाँ पे equipment दो अलग-अलग level पे चाहिए. One equipment 120 will require at the start. Another equipment 10 will be required at the beginning of third year. At the end of 8 years, the original equipment will have a resale value equivalent to the cost of removal, but additional equipment will be sold for 1 lakh. So basically, original equipment का कोई resale value नहीं है और नए equipment का resale value है 1 lakh. Working capital of 15 will be needed. The 100% capacity of the plant is 4 lakh units per annum, but the production and the sales volume are expected as under. Year 1 capacity, year 1 20%, year 2 30%, year 3 to 5, year 6 to 8. A sale price of rupee 100 per unit with a profit volume ratio of 60% is to be obtained. Profit volume ratio, contribution upon sales into 100. So in short, contribution is 60% of selling price. Selling price is 100, contribution per unit will be 60. Fixed cash cost are likely to be 16 lakh per annum. In addition to this, the advertisement expenditure will have to be incurred as under. Year 1, year 2, year 3 to 5, year 6 to 8. The company is subject to 50% tax. Straight line method of depre, very good straight line method है. Permissible for tax purpose also, and taking an appropriate cost of capital should the project be accepted. Boils down to one simple answer. Should the project be accepted? NPV 0, positive yes, NPV negative no. Correct? So the calculation again. 1. Question number 18. NPV कैलकुलेट करना है हमें. अपना कैलकुलेशन पहले जैसा PV इनफ्लो 1, रिकरिंग इनफ्लो 2, salvage value of asset, and 3rd, I guess recovery of working capital. PV outflow 1, cost of asset, and 2nd, working capital. करेक्ट है? टू गुड. अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो आई गेस वील गो अहेड, बट अगर अपना आंसर नेगेटिव आ जाए तो वील हैव टू स्टॉप वर्किंग ऑन दैट. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ. रिकरिंग इनफ्लो, वर्किंग नोट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. प्रोडक्शन 100% कैपेसिटी पे 4 लाख यूनिट्स है. ईयर 1, ईयर 2, 3, 4, 5 ईयर का कैपेसिटी सेम है. 6, 7, 8 ईयर का भी कैपेसिटी सेम है. सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन इन 3, 4, 5 सेम होगा, 6, 7, 8 सेम होगा. फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहता है. डेप्रीशिएशन SLM बोला तो डेप्री भी सेम रहेगा. कैन आई से इन शॉर्ट हमारे CF 3, 4, 5 के लिए सेम होंगे और हमारे CF 6, 7, 8 के लिए भी सेम होंगे. करेक्ट है ना? तो क्यों 3 बार कैलकुलेशन करें? एक ही बार कैलकुलेशन करेंगे and we'll multiply it by a cumulative discounting factor of 3, 4, 5. Have a look here. कैसे कर रहा हूँ मैं? Years, working note number 1, recurring inflow की बात कर रहे हो आप. Years 1, 2,
3, 4, 5 and 6, 7, 8. Correct है? First one, units. Year 1, you are operating only on 20% of the capacity. So, 4 lakh ka 20%. Is it 80,000 units for the year 1? Year 2, we are operating on 30% of the capacity, 1,20,000 units. Year 3, 4, 5, we are operating on 75% of the capacity, 4 lakh ka 75%, 3 lakh units. And year 6, 7, 8, we are operating on 50% of the capacity, so back to 2 lakh units. Units हुआ. Second, contribution per unit 60, 60, 60, 60. Sales was rupees 100 and PV ratio was 60%. That is contribution upon sale. So contribution is 60% of sale. So that comes to what? 60. Units multiplied by contribution per unit, you are going to reach to something that is known as contribution in terms of amount. 80,000 into 60. Amount? Very good. 1,20,000 into 60. 3 lakh into 60. And 2 lakh into 60. 1 crore 20 lakhs. Perfect एकदम. कोई डाउट्स आपको? कंटिन्यूएशन. कंट्रीब्यूशन तक पहुंच गए, हमें CF तक पहुंचना है, दैट इज कैश फ्लो तक. तो हम क्या करेंगे? कंट्रीब्यूशन से माइनस फिक्स कॉस्ट, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट भी है. करेक्ट ना? कंट्रीब्यूशन माइनस ऑल एक्सपेंसेस. आई वांट टू रीच टू एन अमाउंट नोन एज NPBDT. अगर आपको CF याद है तो हमारा पहला स्टेप होता है NPBDT लेस डेप्री, NPBT लेस टैक्स, NPAT और डेप्रीशिएशन फिर से ऐड करना है, तो CF पे पहुंच जाओगे. फिक्स कॉस्ट 16 लाख एंड फिक्स कॉस्ट होता है आई गेस विल बी सेम फॉर एवरी ईयर. 16 lakh. Don't have a silly error of multiplying it by 3 year. 3, 4, 5 मतलब 3 साल की कैलकुलेशन नहीं कर रहे आप, ईयर 3 की ही कैलकुलेशन कर रहे हो, जो 4 के लिए भी सेम रहेगी, 5 के लिए भी सेम रहेगी. तो मल्टीप्लीकेशन 3 से नहीं करना आपको. दिस इज सिंगल ईयर कैलकुलेशन विच इज सिमिलर टू द 4th ईयर एंड द 5th ईयर. एंड सेम ईयर दिस इज सिमिलर टू 6th ईयर, 7th ईयर एंड 8th ईयर. हम इसको जाके मल्टीप्लाई करेंगे क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. कंटिन्यूएशन ऑफ दैट. एडवर्टाइजमेंट, हाउ मच इज एडवर्टाइजमेंट इन ईयर 1? 30. Year 2, year 3, 4, 5, and year 5, 6, 7, 6, 7, 8, 4 lakhs. So check करें. 40 minus 16, 32 minus 30. Are we left with 2 lakhs? That is NPBDT. Correct हूँ मैं? Next one, 72 minus 16 minus 15, 41. 1 crore 80 minus 16 minus 10, 1 crore 54. And 1 crore 20 minus 20. Is it a crore? This is NPBDT. लेस क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? डेप्रीशिएशन हम लेस करेंगे. तो NPBT पे जाना है. Less tax, NPAT, add depreciation back. But tax, depre less करना है. If I'm not wrong, we require 2 assets. पहला asset I guess we require at the beginning of year 1 only, and एक और asset चाहिए जो beginning of year 3 चाहिए मुझे. Yes or no? Original asset कितने का है? What is the cost of the original assets? First line पे लिखा हुआ है. मिला 1 crore 20 lakh. Now have a look here. डेप्री की बात कर रहे हैं. मशीन 1
1,20,00,000 का असेट है, उसका सैल्वेज वैल्यू नील बोला है, एंड लाइफ ऑफ द असेट इज 8 years. So 1,20,00,000 divided by 8. 15. Okay. What is the second asset we require? This is debris for one asset. एक और asset की जरूरत है हमें, कितना? 10 lakhs. उसका स्क्रैप वैल्यू 1 lakh आगे मिल जाएगा आपको. और वो 10 लाख का जो असेट है वो कब चाहिए आपको? नहीं, when are you buying that asset? क्वेश्चन में लिखा है we require 10 lakh of asset at the beginning of year 2, at the beginning of year 3. At the beginning of year 3 चाहिए. So year 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब can I say this asset will stay with me for 6 years? So this asset will stay with me for 6 years. Now 10 lakh minus 1 lakh divided by 6. 1,50,000 plus 15 lakh. Now check this out. एकदम आराम से आप वर्किंग देखेंगे इस पे. प्लीज डेप्री की बात कर रहा हूं मैं. फर्स्ट ईयर हम लोग डेप्री की बात करेंगे. तो फर्स्ट ईयर तो हमारे पास पहला मशीन है, सिर्फ एक मशीन 15. सेकेंड ईयर एक ही मशीन है 15. थर्ड ईयर पे दोनों मशीन आ गए 1650 एंड इवन ईयर 1650. कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? माइनस करते हैं. NPBDT माइनस डेप्रीशिएशन इज NPBT. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डू आई हैव अ लॉस ऑफ 13 lakhs? नेक्स्ट वन 26 lakh का प्रॉफिट. नेक्स्ट वन 1,37,50,000 and the last one 83,50,000. Do you agree with that one? Now ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में भी सीखा था. माइनस टैक्स करना है. फर्स्ट ईयर लॉस है, टेक्निकली स्पीकिंग लॉस पे टैक्स तो लगेगा नहीं, बट फर्स्ट लाइन अंडरलाइन किया मैंने क्वेश्चन का. इट्स अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, एंड इफ इट इज अ हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी, वो कंपनी के पास प्रॉफिट्स है, उस प्रॉफिट में ये लॉस जाके मर्ज हो जाएगा. व्हाट विल हैपन इज टैक्स कम हो जाएगा कंपनी का. देयर विल बी नो आउटफ्लो ऑफ टैक्स इन दिस केस. देयर विल बी टैक्स सेविंग ऑफ 6,50,000. टैक्स सेविंग, एंड इफ द टैक्स इज सेव्ड, माय नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 6,50,000 का लॉस. पहले 13 लाख का लॉस हो रहा था, उसमें हम लोग ने 6,50,000 का टैक्स बचा लिया, तो इसीलिए हमारा आफ्टर टैक्स हो गया 650. और ये एग्जिस्टिंग कंपनी है. इमीडिएटली इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लूंगा जहां पे वो एग्जिस्टिंग कंपनी ना हो, एंड व्हाट इफ दिस कंपनी इज अ न्यू कंपनी. सो इन दैट केस फर्स्ट ईयर कोई टैक्स नहीं, लॉस विल कंटिन्यू एट 13, बट ये जो लॉस है वो हमें फ्यूचर ईयर्स में सेट ऑफ करने मिलेगा. विल अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन. आगे जाता है. सेकेंड 13 लाख, सो 13. थर्ड tax is 50% ना? 68 lakh 75,000 and the last one 41 lakh 75,000. Too good. और इसमें हम क्या ऐड कर दे फिर से? Depreciation of 15 lakh, of 15 lakh, of 16 lakh 50,000 and 16 lakh 50,000 once again. So we should get the answer of 15 minus 650. Is it 850? This is the CF. 28 lakh. That's the CF. 67, 68, 85 lakh. 25,000. 58 lakh 25,000. Too good. CF मिला, हमें CF नहीं, हमें DCF चाहिए. तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्काउंटिंग रेट से. डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर. व्हाट्स अ डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर द फर्स्ट ईयर? 10% के रेट्स दिए आपको? नहीं. तो हमें 10% के रेट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. यहां पे आते हैं. डिस्काउंटिंग फैक्टर ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
चलो कैलकुलेशन करेंगे आप सब मेरे साथ. 1.1 डिवाइड 1.1 डिवाइड इक्वल टू बोलो 0.909. करेक्ट है? 12% है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% कैलकुलेट करता है. 1.1 नहीं, 1.12 डिवाइड बोलो आंसर. 1.12. कुछ गलत कर रहे हो आप, बिकॉज मेरा आंसर आ रहा है 0.893. नेक्स्ट वन. वेरी गुड. नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन. वेरी गुड. टू गुड. लास्ट, सेकेंड लास्ट एंड द लास्ट. करेक्ट है? फैक्टर्स दिया हुआ है. वेरी गुड. नहीं, ओके, वहाँ पे ठीक है. क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 to 8 ईयर्स की बात करें. नाउ हैव अ लुक योर ईयर 1 ईयर 2 तो अलग कैलकुलेशन किया है. 3 4 5 कहना से कैलकुलेशन अलग अलग है. नाउ हमें क्या चाहिए? 3 4 5 का क्यूमुलेटिव, 6 7 8 का क्यूमुलेटिव. सो व्हाट इज अ क्यूमुलेटिव फॉर 3 4 5? 0.712 प्लस 0.636 प्लस 0.576 1.915. Second 0.507, 0.452, 0.404, 1.363. क्यूमुलेटिव लेना है बिकॉज कैलकुलेशन 1 साल का किया है, हमें उसे 3 साल पे लेके जाना है. अब वो क्यूमुलेटिव होगा. करेक्ट है? बैक टू द वर्किंग. डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.893, 0.797, 1.915, 1.363. Please get me the answers now. DCF. चलो 8,50,000 into 0.893. 7,59,050. 050. Very good. 22,31,600. Year 2 का आ रहा है कैलकुलेशन. 1,63,25,375. This is a DCF for year 3, 4 and 5 साथ में. करेक्ट है एकदम. नेक्स्ट वन. 79,39,475. टू गुड. अब सबका टोटल कर दो, पूरे DCF का टोटल. DCF 1 2 3 4. आई वांट टोटल फॉर एवरी 4 ऑफ देम. तो ये जो टोटल आएगा हमारे पास विल बी द टोटल ऑफ DCF रिकरिंग इनफ्लोस. कॉन्सेप्ट समझा? एंड दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस पार्ट. और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना इसकी कैलकुलेशन और भी मजा आएगी. चलिए टोटल बोलिए आप इसका. 2 करोड़ 72,55,500. 2 करोड़ 72,55,500 is my recurring inflows. Working note number 2. Salvage value of asset. 2 asset थे. Depreciation तो SLM से ही चार्ज किया हम लोग ने, तो salvage value में कोई difference नहीं आएगा. Scrap value will be equal to salvage value. Yes or no? But फिर भी 2 asset का calculation. Working note number 2. 2. Salvage value. Machine 1 nil. Machine 2 1 लाख आ रहा है, पर ये 1 लाख आएगा कब? आज थोड़ी आएगा. ये 1 लाख हमारे पास कब आएगा? 8th ईयर के एंड पे. सो 8th ईयर के एंड का सैल्वेज वैल्यू अगर मैं बोलूं, इज इट 0.404 मल्टीप्लाइड बाय 0.404. सो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.404 इज इट 40,400. 40,400 क्या मिला हमें? सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एसेट. दैट इज वर्किंग नोट नंबर 2. बैक टू द टेबल. वर्किंग नोट नंबर 2. 40,400. वर्किंग नोट नंबर 3. रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. कितने का वर्किंग कैपिटल गया है प्रोजेक्ट के अंदर? 15 लाख. आउटफ्लो 15 लाख जा रहा है, तो कहने से वही 15 लाख वापस भी आएगा हमारे पास, पर आज नहीं आएगा. ये 15 लाख हमारे पास कब आएगा? 8th ईयर के एंड पे. सो वर्किंग नोट नंबर 3
This is 2, this is 3. Recovery of working capital 15 lakh multiplied by 0.404 again. आंसर बोलिए. 6,06,000. वेरी गुड. 6,06,000. कैलकुलेशन समझ रहे हो आपको? चलो 6,06,000 रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. 6,06,000. Can I take a total of all the inflows? 2 crore 72 55 500 plus 40,400 plus 6,06,000. Answer? 2 crore 79 lakh 1,000. 900. This is total of inflows. Outflow, cost of the asset. Working note number 1, 2, 3, 4. 4. Cost of asset. यहाँ पे भी आप भूलिएगा मत, 2 असेट चाहिए. 1, मुझे 1 करोड़ 20 लाख का असेट चाहिए आज का डिस्काउंटिंग रेट 1 करोड़ 20 लाख. सेकेंड, मुझे दूसरा असेट चाहिए 10 लाख का, बट वो आज नहीं चाहिए, एट द एंड ऑफ ईयर 2 और आई कैन से बिगिनिंग ऑफ ईयर 3 पे चाहिए. बिगनिंग ऑफ ईयर 3 बोलो या एंड ऑफ ईयर 2 बोलो, डिस्काउंटिंग रेट कौन सा लगेगा? सेकेंड ईयर वाला. तो सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग रेट है 0.797. सो इज इट 7,97,000? 10 लाख का 0.797, 7,97,000. सो टोटल 1 करोड़ 27 लाख 97,000. 1 crore 27 lakh 97,000 plus 15 lakh is 1 crore 42 lakh 97,000 minus 2 crore 79 lakh 1,900. 1 crore 36 lakh 4,900. Is it positive? And if NPV is positive, your decision should be yes, we should go ahead with the project. Are we clear? पक्का? Too good. चलिए कॉपी करना स्टार्ट कीजिए पूरा क्वेश्चन प्लीज.
So are we done with question number 18? We shall go to 19th one now. XYZ is planning to introduce a new product with a project life of 8 years. The project is to be set up in Special Economic Zone and qualifies for one-time at a start tax-free subsidy from the state government for 25 lakhs. तो हमें 25 लाख का सब्सिडी भी मिलेगा. Next, initial equipment will cost 1.75 crore. Additional equipment costing 12 lakh 50 will be purchased at the end of third year from the cash flow of inflow of this year. But at the end of third year, अभी project 8 साल का है, very similar to the previous question. First machine आज से 8 साल मतलब 8 साल रहेगा. Second machine at the end of third year आने वाला है. So basically operation starts from fourth year. So 4, 5, 6, 7, 8 5 साल और चलेगा. Correct है? Continuation of that. At the end of 8 years, the original equipment will have no resale value, but additional equipment can be sold for 1,25,000. The working capital of 20 lakh will be needed and it will be released at the end of 8th year. The project will be financed with a sufficient amount of equity capital. The sales volume over 8 years have been estimated as follows. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. यहाँ पे split अगर आप देखेंगे तो year 1, 2, 3 अलग है because जो next machine आ रहा है ना वो end of third year पे आ रहा है तो third year को अलग करके रखा है इन्होंने. Previous question से compare करते रहो. Next one. The selling price is expected to be 120 per unit is expected and variable expenses will amount to 60% of the sales revenue. Selling price is 120 and variable expenses 60 per unit 60% बोल रहे हैं तो can I say 120 से हम 60% निकाल देंगे तो हमें contribution मिलेगा. 120 का 40% will be our contribution. 120 का 40% will be 48. Next, fixed cash operating cost will be 18 lakhs per annum. The loss of any 1 year will be set off from the profit of subsequent 2 years. मतलब अगर कोई 1 साल लॉस होगा तो उसका बेनिफिट आप नेक्स्ट 2 years तक ले सकते हो. Continuation. The company is subject to 30% tax rate and considers 12% to be an appropriate cost of capital for this project. The company follows straight line method of debris. Once again, the best part is the straight line of debris. उसका मतलब है हम year 4, 5 का calculation एक साथ कर सकते हैं, year 6, 7, 8 का calculation भी एक साथ कर सकते हैं. Calculate the present value of the project and advise the management to take appropriate decision. Note, PV factor at 12% are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Very similar question apart from couple of adjustments. Can I start working on this? Too good. चलो, first things first. और आप चेक करेंगे मेरे लिए. First one. I guess हमारे पास यहाँ पे एक और inflow आएगा that we are getting a subsidy. So recovery of working capital के बाद I'm putting one more head to your inflows. Fourth one, as I was telling you, was subsidy, and then we can go to PV outflows. और PV outflows में हमारे पास यहाँ पे one is cost of asset and two is working capital. Problem is very similar except the calculation of taxation. Chalo. First things first, NPV, working note number 1. Recurring inflow, years 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7 and 8. यहाँ पे year 1, 2, 3 का split अलग होगा because machinery is coming at the end of third one. चलो फर्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे कैपेसिटी. ईयर 1 में कैपेसिटी कितना है? 72,000. ईयर 2 1,08,000. ईयर 3 ईयर 4 270 and last year
Very good. Now this is units. Immediately on the next line, contribution per unit जो last time किया था वैसे ही. I guess they have given you the selling price of 120 and they said variable cost is 60%. तो variable cost या sales से लेके क्यों काम करूँ? Sales minus variable cost सीधा contribution आएगा ना. हमें पूरा presentation नहीं, हमें CF तक पहुँचना है. So the way I'm directly joining the contribution, 120 का 40%, that's 48. So contribution per unit is 48 if I'm not wrong. Continuation of that, we'll get contribution in terms of amount. Now we start calculating 72,000 into 48. 34 lakh 56,000. 1 lakh 8,000 into 48. 51 lakh 84,000. Very good. 2 lakh 60 into 48. 1 crore 24 lakh 80,000. 80. Yeah. Very good. 2 lakh 70 into 48. 1 crore 29 lakh 60,000. And the last one. 1 crore 80 into 48. 86 lakh 40,000. Too good. And guys, जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम किया था वैसे ही आप ये कैलकुलेशन मत भूलना कि ये 4th and 5th ईयर का कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन 6th, 7th, 8th ईयर का है. यहाँ पे 2 साल है, यहाँ पे 3 साल का कैलकुलेशन हो रहा है. परफेक्ट है. कंटिन्यू. कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करें हम लोग अभी? फिक्स कॉस्ट. एंड हाउ मच इज अ फिक्स कॉस्ट गिवन टू यू? दैट विल रिमेन 18 lakhs every year. No changes absolutely. Okay. Do we have any advertisement cost as we had in the previous question? No. So सिर्फ fixed cost minus कर देते तो we will get something that is known as NPBDT. आपका सबसे पहला टास्क ये होना चाहिए that we need to reach to NPBDT. Are we clear with that one? So first 34 minus 18, 16 lakh 56,000. 51 minus 18, 33 lakh 84,000. 124 minus 18, 1 crore 6 lakh 80,000. 1 crore 11 lakh 60,000. And 86, 76, 70, 66, 68 lakh 40,000. This is NPBDT. लेस क्या करेंगे हम लोग यहाँ से? डेप्रीशिएशन. बट लेट्स नॉट फॉरगेट यहाँ पे भी डेप्रीशिएशन में हमारे पास 2 मशीनरीज है. फर्स्ट वन मशीन 1 का डेप्री. वर्किंग नोट फॉर डेप्री मशीन 1 कितने का है? मशीन 1 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इट 1 crore 25 lakhs? 75 lakhs. Scrap value of machine 1, if I know well, was nil and it was supposed to be used for 8 years. So 1 crore 75 lakh divided by 8. What's the answer? 21 lakh 87,500 is the depreciation of machine 1. Machine 2, 12 lakh 50. Scrap value? 1,25,000. and now ये मशीन ना 3rd ईयर के एंड में आ रहा है तो 4, 5, 6, 7, 8 ये मशीन हमारे पास कितने साल चलेगा? 5 साल. सो डिवाइडेड बाय 5. चलो 1250 minus 125 divided by 5. व्हाट्स द आंसर? 2 lakh. जकास. ऐड कर दो. 23, 24 lakh 12,500. बट ये 24 लाख 12,500 दोनों मशीन का डेप्री है जो 4th ईयर से लगेगा. बट 1st, 2nd, 3rd ईयर तो सिर्फ एक ही साल का डेप्री लगेगा ना अपना. सो डेप्रीशिएशन की बात करते हैं. कम बैक टू द बेसिक. डेप्री फर्स्ट वन 21 lakh 87,500. सेकेंड ईयर 21 lakh 87,500. Third year 21 lakh 87,500. 4th and 5th year 24 lakh 12,500 and 24 lakh 12,500. Did you understand the calculations, everyone? Too good. Now NPBDT minus depre is NPBT.
16 lakh 56 minus 21 lakh 87,500. 5,31,500 का क्या आ रहा है? लॉस. सेकेंड ईयर 11,96,500. प्रॉफिट. नेक्स्ट ईयर 84,92,500. 84,92,500 प्रॉफिट. नेक्स्ट ईयर 87,47,500. that's profit again. The next year 44,27,500. that's the profit again. Is it correct? Now comes the most important calculation of the question basically is the tax. Less यहाँ पे हमें करना है tax और tax the question very specifically stated that कि अगर कोई भी साल में लॉस हो जाए तो इसका बेनिफिट हम आगे के 2 साल में ले सकते हैं. मीन्स आप यहाँ पे डायरेक्टली उसका टैक्स का बेनिफिट फर्स्ट ईयर में नहीं लेंगे. Now this is not an existing company, this is specific zone, special economic zone पे सेटअप है. उन्होंने कहा ये सारी कैलकुलेशंस अलग रखना. मतलब सी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट साल कोई टैक्स नहीं और टैक्स का बेनिफिट भी नहीं. इसका बेनिफिट मैं आगे के 2 साल में ले सकता हूँ. सो फर्स्ट ईयर माई NPAT स्टैंड्स एट 531,500 का लॉस. सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन आप देखिए आराम से. हाउ मच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 11,96,500. नाउ द कैलकुलेशन प्लीज यहाँ पे सेकेंड ईयर का वर्किंग. सेकेंड ईयर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 11,96,500. इज इट नेट प्रॉफिट ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. हैव अ लुक हियर. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यही लिखा है मैंने. इस पे टैक्स नहीं होगा क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर का लॉस राइट ऑफ करना है. बेनिफिट अवेलेबल है और 2 साल तक कर सकते हैं. अब मुझे 2 साल तो जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 531 पूरा एक ही साल में निकल जाएगा. सो लेस द लॉस ऑफ द फर्स्ट ईयर 531,500 का लॉस हटा दो. 11,96,500 minus 531,500. How much is that? 65,000. Now what is 6,65,000? Can I say this is known as taxable profit? This is not the profit ना. Actual profit तो 1196 ही है पर फर्स्ट ईयर का लॉस राइट ऑफ करने के बाद जो प्रॉफिट मिला हमें इसे हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट. इस पे हम टैक्स चार्ज करेंगे. 6,65,000 पे टैक्स. इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इट 30%? हाउ मच इज द टैक्स देन? 1,19,500 हमें क्या मिला? टैक्स. And this is the amount we'll subtract from net profit before tax of the current year. 665 से माइनस मत करना. 665 प्रॉफिट नहीं था. 665 तो टैक्सेबल प्रॉफिट था. माइनस कहां से होगा ये 119,500? बैक टू द स्टेटमेंट. माइनस 1,99,500. माई मिस्टेक. 1,99,500. 30% निकाला आपने? ओके क्लियर है? ओके 199,500 कहां से माइनस करेंगे हम लोग? 11,96,500 से. सो 11,96,500 माइनस 199,500 आंसर कम्स टू 9,97,500. 500 तो माइनस हो जाएगा ना. टू गुड. गॉट द कैलकुलेशंस राइट. पक्का. चलो टेक इट अहेड. 11,96,500 बरोबर था. 199,500 आ रहा है कि 199 है? एक बार वो चेक करो. 6,65,000 का 30%. ओके टू गुड. तो फिर ये भी 997 ही होना चाहिए. नाउ कॉन्सेप्ट समझा? अगर लास्ट क्वेश्चन होता ना तो यहीं से हम टैक्स कैलकुलेट करते उसे आफ्टर टैक्स करते. यहां पे हमें क्या करना है? इससे माइनस करके आंसर लेके आना. करेक्ट. कंटिन्यूएशन. चलो 84,92,500 का 30% निकालो. 84,92,500 का 30%. 25,47,750. वेरी गुड. नेक्स्ट 87,47,500 का 30%. 26,24,050. 2 एंड द लास्ट वन 44,27,500 का 30%. 13,28,250. 2 चकास. चलो आफ्टर टैक्स के आंसर दो. फर्स्ट ईयर हो चुका है, सेकेंड ईयर हो चुका है, थर्ड ईयर 84,92,500 minus 25,47,750. 59,44,070.
59 lakh 44,750. Too good. Next one. 61 lakh 22,009. नहीं, रॉन्ग कर रहे हो, पूरा गलत है, आराम से करो, बोलो फिर से आंसर बोलो। 30,99,000। किसका? लास्ट का? हाँ, 30 लाख 99,250। 99,250। सेकेंड लास्ट का? 61,23,250। वेरी गुड, 61,23,250 करेक्ट आ रहा है एकदम। टू गुड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला है, इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग? डेप्रीशिएशन अगेन। ये टैक्स का कैलकुलेशन सीखना था आपको इस क्वेश्चन में, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। डेप्री 21,87,500, 21,87,500, 21,87,500, 24,12,500, 24,12,500. That's the debris. Plus, so we get the CF. Please answer. नहीं सर, माइनस करना था। 16,56,000। 16,56,000. Next one. 31,85,500। 31,85,500. Next one. 81,32,250। 32,250. The next one. 85,35,000। 85,35,750. 750। Very good. And the last one. 55,11,750। 55,11,750. That's your CF. करेक्ट एकदम। अभी CF को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? डिस्काउंटिंग फैक्टर टू गेट द DCF। सो मल्टीप्लाइड बाय द डिस्काउंटिंग फैक्टर। फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 0.893। नेक्स्ट ईयर? 0.797। नेक्स्ट ईयर? 0.712। वेरी गुड। नेक्स्ट ईयर? 2 years का फिर। बट कैन आई से 2 years का क्यूमुलेटिव लेंगे हम लोग, 4th and 5th ईयर का, और फैक्टर आपके पास है, इस टाइम आप ऐड करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करवा रहा हूँ। फैक्टर ऐड करो 4th and 5th ईयर का, बोलो कितना आ रहा है? 1.203। 1.203। ये कौन से ईयर के क्यूमुलेटिव है? 4th and 5th ईयर का क्यूमुलेटिव है। अब 6th, 7th, 8th ईयर का क्यूमुलेटिव दो मुझे, 3 साल का क्यूमुलेटिव फैक्टर बोलो। 1.363। 1.363 करेक्ट। टू गुड। चलो नाउ DCF 1656 into 0.893। 14,78,808। 14,78,808। Next one. 31,85,500 into 0.797। 25,38,843.5। 844 कर दूं फिर? ओके। नेक्स्ट वन। 57 लाख 57 लाख 90,162। 90,162। नेक्स्ट वन। 85 हाँ 1 crore 26,85,008। 0 85,008। 08। 1 crore 26 lakhs। हम्म नहीं सॉरी 1 crore 2,68,508। आराम से 1 करोड़ 2,68,508। 2,68,508 एंड द लास्ट वन। राइट है ये? चेक कर लो एक बार ये कैलकुलेशन। आप लास्ट वन बोलिए। 75,12,515। 75,12,515। गॉट दैट? टू गेट। चलो पूरे DCF का टोटल 1 2 3 4 5 ऑल द टोटल्स आई वांट। कौन सा? 81,32,000। हाँ So 2 crore 75,88,836। 2 करोड़ 75,88,837। वेरी गुड। 2 crore 75,88,837। We take the total to your statement 1. That's working note number 1.
2,75,88,837 एकदम करेक्ट है. वर्किंग नोट नंबर 2, salvage value of the asset. एकदम सिंपल. वर्किंग नोट नंबर 2, salvage value of the asset. फर्स्ट असेट पे तो कुछ नहीं आ रहा है. सेकेंड असेट नंबर 1 पे नील. असेट नंबर 2 पे आई एम गेटिंग 1,25,000, बट आई गेस दैट 1,25,000 विल कम एट द एंड ऑफ 8th ईयर. तो 8th ईयर का फैक्टर इंटू 0.404, 50,500. बाकी सारे कैलकुलेशंस एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. 50,500. वर्किंग नोट नंबर 3, रिकवरी ऑफ वर्किंग कैपिटल. 20 और 25 सर, पक्का? ओके. $20 lakhs. पर कब आएगा ये 20 lakhs? So into 0.404, 8,08,000. Too good. So 8,08,000 is a recovery of working capital. सब्सिडी, कितना सब्सिडी आ रहा है? कब आ रहा है? एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. सो नो वर्किंग रिक्वायर्ड. पूरा 25 लाख हमको सब्सिडी मिल रहा है. करेक्ट जा रहा है. चलो टोटल करो. 2,75,88,837 प्लस 50,500 प्लस 8,08,000 प्लस 25 lakhs. 3 crore 9,46,938. 3 crore 9,46,938 is my answer. Next one, working note number 4. वर्किंग कैपिटल 25 lakhs जा रहा है, सॉरी 20 lakhs जा रहा है. जितना जा रहा है उतना ही वापस आया पर डिस्काउंट होके. बट वर्किंग नोट नंबर 4 असेट का बनाना पड़ेगा. कॉस्ट ऑफ असेट, I need 2 assets. Asset number 1, I guess is 1,75 lakh. आज ही जा रहा है. Into 1,75 lakh. एक दूसरा asset चाहिए मुझे 12,50,000. End of third year. तो third year का discounting rate, if I am not wrong, is it 0.712? 12,50,000 into 0.712. 8,90,000 plus 1,75 lakh, 1,83,90,000. करेक्ट एकदम. टू गुड. इसको टेबल पे लिखते हैं. 1,83,90,000. सब्सिडी जो मिला है वो 25 lakhs ये रहा. चलो टोटल 1,83,90,000 प्लस 20 lakhs, 2,03,90,000. Got that? माइनस कर दो. 3,09,46,938. 1,05,56,938. Is it positive? Your decision has to be a big yes. क्लियर. टैक्स कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन और इसके प्रीवियस क्वेश्चन फिर से एक बार आप कैलकुलेट करके देखना टैक्स कैलकुलेट कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन में. करेक्ट. टू गुड. कॉपी एंड वी कैन गो अहेड.
एक छोटा सा कैलकुलेशन एरर, आई गेस दैट्स व्हाट आई नोटिस नाउ. Year 2, you guys stop writing, let me complete this and then you can come back. Year 2 में हम अगर चेक करें 9,97,000 minus 21,87,500, आंसर comes to 31,84,000 ना, 31,84,500 आ रहा है, multiplied by 0.797. So how much will be the answer now? 047. I want you to check this out, everyone, please, once. कैलकुलेट करो सर, कैलसी है आपके पास. 31,84,500 इंटू 0.797, यू रीच टू 253804.47. करेक्ट है? दैट विल चेंज दिस टोटल ना, इसीलिए मैंने आपको स्टॉप कराया. प्लस 1478,808 प्लस 57,91,62 प्लस 102,68,508 plus 75,12,515, 27 lakh 58,000, नहीं 2 crore, sorry, 2 crore 75 lakh 88,040. करेक्ट है अभी? टू गुड. थोड़ी बहुत टोटल चेंज हो रहा है, यहाँ पे आइए फिर से. तो यहाँ पे भी 2 crore 75 lakh 88,040 प्लस 50,500 प्लस 8 crore 8 lakh 80 प्लस 25 lakh 3 crore 9 lakh 46,540 minus 203,90. Answer comes to 1 crore 5 lakh 56,540. That's a simple calculative error. I guess it matches now. Too good. You guys can continue copying now, please.
So guys, are we done? Too good. We are done with question number 19. Too good. चलो, next question will be question number 20. Next page पे जाइए और question number 20 start करते हैं. A company is setting up a project at a cost of 330 lakhs. It has to decide whether to locate the plant in the forward area or the backward area. Locating in backward area means a cash subsidy of 15 lakhs from the central government. Besides, the taxable profit to the extent of 20% are exempt for 10 years. The project envisages a borrowing of 200 lakhs in either case. Underline the word the project envisages a borrowing of 200 lakhs in each case. Next one. The cost of borrowing will be 12% in forward area and 10% in backward area. However, the revenue costs are bound to be higher in the backward area. The borrowing have to be repaid in 4 equal annual installments beginning at the end of the 4th year. With the help of following information and using a DCF technique, you are required to suggest the proper location of the plant. Years 1 to 10, profit or loss before interest and depreciation are given to you for forward area and backward area. Present value factor that is given to you at कितना percentage? Now I'll assume that ये जो present value factor आपको 15% discounting rate दिया गया है वो purely equity sense of view से दिया गया है. Unless and until they tell you this is from long term funds point of view or this is from total funds point of view, we'll purely assume that this is equity sense. मतलब ये जो 15% return चाहिए वो किसको चाहिए? Equity को. And what will this do is, you know, how much is a project costing? 330. कितने का लोन ले रहे हो? अगर हम 330 का प्रोजेक्ट करके 200 का लोन ले रहे हैं, दैट मीन्स योर इक्विटी कंट्रीब्यूशन स्टैंड्स ओनली एट 130. दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंसिपल कि हम सिर्फ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें सोचेंगे. रिकरिंग इनफ्लोज भी सोचेंगे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? और उसके बाद लास्ट में टर्मिनल वैल्यूज भी सोचेंगे, वो भी सिर्फ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? इक्विटी. इसीलिए लोन का रीपेमेंट भी दिखाना पड़ेगा. ये पूरे क्वेश्चन को ना हम लोग फिर से एक बार सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम लेट्स से लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू. और लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से करें ना तो प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी 330. लोन हैज टू बी डिसरिगार्डेड बिकॉज लोन विल बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स. रिकरिंग फ्लो में जाओगे तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा. टर्मिनल वैल्यू जब हम आउटफ्लो की बात करेंगे तो रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं दिखना चाहिए बिकॉज दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द फंड्स. But that's what I'm saying. Unless and until question specifies, you will not go into all this. You will purely assume कि जो return दिया हुआ है वो कौन से point of view से दिया गया? Equity. Take it ahead. Continuation of that. The annual depreciation may be taken at 30 lakhs. Interest on borrowing may be worked out at the respective areas. An average rate of tax may be taken at कितना percentage? And this is May 91 का question. Two things. First of all, डिसाइड क्या करना है कि हमें प्लांट सेटअप कहाँ पे करना है. एंड वी हैव गॉट 2 कॉल्स. वन इज फॉरवर्ड एरिया एंड सेकंड वन इज व्हाट? डिसीजन लेने में व्हाट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट वी कैन टेक एंड डिसाइड विथ? एनपीवी. तो जो एरिया में एनपीवी सबसे ज़्यादा आएगा वहाँ पे हम लोग प्लांट सेटअप करेंगे. एनपीवी इज इक्वल टू पीवी इनफ्लोज माइनस व्हाट? कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन? टाइटल पे लिखे एनपीवी. वो लोग क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया ना तो हमें अज्यूम करना है कि जो रेट दिया है वो इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है. अनलेस एंड अनटिल द लोन्स आर नॉट स्पेसिफाइड टिल दैट डेट. आज तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे थे कभी उन्होंने आपको ये क्वेश्चन में बताया कि हमें लोन लेना है इतने का? और उन्होंने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया था सीधा. अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया उसका मतलब क्या है? दैट फंड्स इंक्लूड्स इक्विटी एंड डेट बोथ. हम एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे. जस्ट एक ब्लैंक एग्जाम्पल लेते. लेट्स से प्रोजेक्ट इज कॉस्टिंग 600 एंड दे टोल्ड यू कि इसका WACC 10% है. व्हाट इज WACC? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स कहना है इसके अंदर डेट इक्विटी और उन दोनों का कॉस्ट कितना आ गया. अभी एक्चुअली उसके अंदर डेट कितना था वो इन्फॉर्मेशन कभी नहीं दी हमें. और इन्फॉर्मेशन दे भी देना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. फिर हम रिकरिंग कैश फ्लोज के बारे में सोचते हैं. हाउ डू वी कैलकुलेट रिकरिंग कैश फ्लोज? NPBDT, that is net profit before depri and tax, less what? Depri, less tax, add the depri back. क्या कर लिया हम लोग ने? कैश फ्लो. इंटरेस्ट माइनस भी नहीं किया हमने. क्यों नहीं माइनस किया? बिकॉज हम लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे. और अब ये लोग क्या कह रहे हैं आपको कि ये 600 में से 200 का लोन है
और बाद में उन्होंने ये WACC वर्ड यूज नहीं किया है. They are saying the return that is required is only from 10%. They are not saying this is purely from equity point, but अपना यही assumption होगा, since they are giving you the loan, its interest rate, and then they are not using the word COC, that means this requirement is only from equity point of view. तो हम सारे कैश फ्लो को सिर्फ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे. लोन रीपेमेंट कर दो, उनको इंटरेस्ट पे कर दो, उनको सब मिल जाना चाहिए, बाद में जो बचेगा वो हमारा होगा, एंड दैट इज नोन एज इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू. Are we clear with that one? Take it. Title पे लिखिए आप. NPV. First one, PV inflow. You tell me first of all, PV inflows में क्या आएगा? What will we have in PV inflows? अब एनपीवी पे चले जाते हैं, बिकॉज अभी से हम बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी पे काम करने वाले हैं. एनपीवी इज इक्वल टू पीवी इनफ्लो. 3 मेजर हेड्स दैट कैन कम हियर ना. 3 मेजर हेड्स दैट कैन कम इन पीवी इनफ्लो. 1 इज नोन एज रिकरिंग इनफ्लो. कौन सा इनफ्लो? रिकरिंग मीन्स द इनफ्लो दैट यू आर गोइंग टू गेट एवरी ईयर. इनफ्लो दैट वी आर गोइंग टू गेट बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी से जो आता है ना, इसे हम रिकरिंग कहते हैं. मतलब यहाँ पे इनकम एक्सपेंस, हर साल का इनकम एक्सपेंस नेट होने के बाद काम करना. सो बेसिकली हमें यहाँ पे कैश फ्लो चाहिए जो हमें हर साल मिलेगा, एवरी ईयर. और कैश फ्लो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रीशिएशन. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन, बिकॉज डेप्री इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इट शुड बी एडेड बैक. वो कैश फ्लोज चाहिए मुझे रिकरिंग इनफ्लो में. द सेकेंड पॉसिबिलिटी आई कैन हैव इज नोन एज recovery of working capital. Recovery of, अगर working capital जा रहा है तो working capital वापस भी आएगा. We have done one of the questions with that. So that is known as recovery of working capital. Third possibility we can have is known as salvage value of asset. These are various possibilities I am talking about. Not sure that it will have every question. सैल्वेज वैल्यू ऑफ द असेट. एट द एंड ऑफ द लाइफ असेट खत्म, बेच दिया, पैसा आएगा, तो उसे हम लोग सैल्वेज वैल्यू कहेंगे. बट इसका टैक्स इम्प्लीकेशन भी सोचना है हम लोगों को. सो दैट इज बेसिकली नोन एज सैल्वेज वैल्यू. दिस 3 आर देयर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन, आर वी गेटिंग अ सब्सिडी? तो वो सब्सिडी भी हमारे लिए क्या हो गया? इनफ्लोस. सो दिस कंस्टिट्यूट्स योर पीवी इनफ्लो. पीवी आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ असेट, वर्किंग कैपिटल. अभी एग्जैक्टली क्लियर? और इस केस में रीपेमेंट ऑफ लोन. तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटफ्लो. सबसे मेन और सबसे मेजर इनफ्लो ना दैट यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग इज नोन एज रिकरिंग इनफ्लो. सो यू प्लीज टेल योर सेल्फ, रिकरिंग इनफ्लो का मतलब होता है सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस, और उसके बाद वो डेप्री टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जो आंसर आता है. एनीथिंग दैट इज रिकरिंग एवरी ईयर विल बी टेकन इन रिकरिंग इनफ्लोज. So don't go by the mistake कि sales will be inflow, expense will be outflow, wages will be outflow, material will be, वो सब नेट करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसको हम रिकरिंग कहते हैं. परफेक्ट है? चलिए फर्स्ट आप लिखिए, अभी सोच समझ के लिखिए. इनफ्लो में क्या है हमारे पास? रिकरिंग इनफ्लो तो आएगा ही. सो 1 रिकरिंग इनफ्लो. PV inflow, that is first one, recurring inflow. Second, do we have recovery of working capital? No. Third, do we have salvage value of asset? I guess yes. What is the cost of the asset? 330. टेबल के नीचे. Annual depreciation may be taken at how much? 30. 330 है. एनुअल डेप्रीशिएशन इज 30. 10 साल डेप्री चार्ज करूंगा तो कितना होगा? व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू? 30. अभी एग्जैक्टली क्लियर? दैट मीन्स हम लोग बेचेंगे उसको, 30 आएगा हमारे पास. हाँ, बट डेफिनेटली उस पर जाके सोचना है टैक्स ये वो. आप बोलो क्या सोच रहे हो? हाँ,
तो मैं 30 नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि हम अमाउंट लिखे निशी, हम बोल रहे हैं कि वो आएगा वहां पे, हम अमाउंट नहीं निकाल रहे अभी। चलो 2 सैल्वेज वैल्यू ऑफ असेट, and third subsidy from government. The third one is subsidy from the government. Are we clear with that one? Next one, PV outflows. 1 cost of asset, and second repayment of loan. And we are making 2 columns, one for forward area and one for backward area. Is it clear? Now have a look here and stop writing there in your calculations. ये सारा जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? मतलब ये एंटायर प्रोजेक्ट थिंग इज डन फ्रॉम द इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ मच विल इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट एंड हाउ मच दे विल हैव टू पे. That's the only calculation we have. Working note number 1. First one I am saying it's recurring inflow. And recurring inflow for first one, forward area. कौन सा area? I can see the table there if you can observe that. Year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And what are the profits they have given to you? Profit or loss before what? Interest and debris. The calculation, year 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N, P, B, D, I, T. Is it a correct word? Net profit before debris, interest and taxes. Correct? How much is net profit before debris, interest and taxes? 6 negative. Next one? 34, 54, 74, 108, 142. Next? Next? And the last one? Is it net profit before debris, interest and taxes? If your minds are getting clear, नॉर्मली इतना लोग सोचते भी नहीं इतना डीप में जाके. इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसीलिए पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, डेप्री माइनस होगा, टैक्स माइनस होगा, डेप्री ऐड होगा. अगर यही क्वेश्चन लॉन्ग टर्म फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से करता तो इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, तो डायरेक्टली क्या माइनस होता? डेप्री. बिकॉज अगेन आई try to put that point. When I say long term funds point of view, तो प्रोजेक्ट के अंदर कौन है? इक्विटी और डेट दोनों बैठे हैं. हम बोल रहे हैं हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, देखते तेरे लिए क्या कमाते हो, मेरे लिए क्या कमाते हो. तो उसका इंटरेस्ट उसे देना नहीं है, हम अपने दोनों की कैलकुलेशन कर रहे हैं. पर अगर हम सिर्फ इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, दैट मीन्स आई एम द ओनली पर्सन सिटिंग हियर. जो भी बाहर से फाइनेंसिंग आया उन सबको अपना रिटर्न दे दो, फिर जो बचेगा वो मेरे लिए होगा ना. अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पहले इंटरेस्ट माइनस, फिर डेप्री माइनस, फिर टैक्स माइनस और फिर डेप्री एड. वो जो कैश फ्लो बचे वो किसके लिए होगा? वो इक्विटी. सी द कैलकुलेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस क्वेश्चन. एनपी बी डी आई टी क्या माइनस करें पहले, फिर क्या माइनस करें? तो आई गेस यू विल रीच टू बी टी. वहां से क्या माइनस करें, फिर कहाँ पहुंचेंगे, फिर कहाँ पहुंचेंगे? एंड देन वी विल से डीसीएफ. DCF is discounted cash flows, and the factors are ready with you. First of all, interest. How much of loan are we taking? 200. Somewhere in the middle of that paragraph, the project envisages a borrowing of 200 lakhs in either case. The cost of borrowing is 12% in forward area and 10% in. That means in forward area you will get a loan at 12% per annum. Continuation. However, the revenue costs are bound to be higher in the backward area. The borrowings have to be repaid in 4 equal annual installments beginning at the end of the 4 equal annual installments. 200, 4 equal annual installment. Is it 50, 50, 50, 50? कब से पे करना चालू करोगे पर? End of 4th year. तो 4th year 50,
फिफ्थ ईयर 50, 50, 50. Interest 200 का 12%. 20. See the calculation. 24, 24, 24, 24, 18, 12, 6, out. 200 का 12%. It's all 24. 50 का लोन रीपे कर दिया, बचा कितना? तो 150 का 18, 50 चला गया, बचा कितना? 100 का 12%, 50 और चला गया, 50 का 12%. Are you understanding that? Next one, depre कितना? 30 every year. So depre will continue at 30 for all the 10 years. बीच में बिफोर टैक्स का कॉलम बनाया हम लोग ने, बिकॉज टैक्स विल बी चार्ज ऑन बिफोर टैक्स. फर्स्ट वन, -6, -24, -30, -60, 34, -24, -30, -20, 54, 24, 30. I guess nil. 20 plus 108, 18, 90, 60 plus 142, 42, 100 plus 36, 156 minus 36, 120 plus 200, 300, 400. क्या मिला ये हम लोग को? प्रॉफिट बिफोर टैक्स. टैक्स कितना परसेंट बोला उन्होंने? कैलकुलेशन करो मेरे साथ. कैलसी में -60 and see what am I writing here also. Dash -60, -20, dash कितना आंसर आया? -80. आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ कैलकुलेशन करो. आप कैलसी को 0 पे डालो फिर से. -60. अभी देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ. -60 लिखा आपने, मैंने डैश किया और यहाँ पे क्या लिखा है? -60, -20. Is it -80? Dash -20, dash dash plus 20 plus 60, 0, 100, 50%, 50, 50. चेक इट आउट. क्या कर रहे थे? लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे और फिर वो लॉस को नेगेट कर रहे थे. Unless and until they tell you that you can take the benefit in the first year itself. Unless and until the question tells you that you can take a benefit of a tax in the same year itself. Benefit of the tax, not the payment of the tax. Benefit. कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं वो भी फाइनल के लेवल पे, तो कभी ये सोचना ही मत कि -60 टैक्स नहीं आएगा, -60 चला जाएगा. या तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा, या तो वो लॉस का बेनिफिट आज मिलेगा. बेनिफिट मिलेगा. मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि इफ गवर्नमेंट इज अलाउइंग मी टू टेक द बेनिफिट टुडे, देन आई विल से -60 प्लस 30, तो लॉस विल बी -30. -60 प्लस 30 -30 इफ गवर्नमेंट अलाउज इट. मतलब लॉस हुआ तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि टैक्स का सेट ऑफ आप इसी साल ले लो. और ये पॉसिबल कब हो सकता है मालूम है? अगर ये एग्जिस्टिंग कंपनी हो और कंपनी पहले से प्रॉफिटेबल हो और वो एक नया प्रोजेक्ट ले रहा है. अगर वो कंपनी एग्जिस्टिंग हो और वो भी प्रॉफिटेबल हो, देन जस्ट इमेजिन व्हाट एम आई सेइंग. कंपनी का पीएनएल तो पहले से है ना एक, और वो पीएनएल के अंदर वो लॉस डाल रहा है कितने का? मतलब ओवरऑल तो प्रॉफिटेबिलिटी था, उसमें मैं 60 का लॉस डाल रहा हूं. मतलब कैन आई से माय ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हैज डिक्रीज्ड, and that allows me to take a benefit of what? Tax. But for that they should tell me the company is a highly profitable company and you can take a tax set off in the first year. Otherwise the losses will be carried forward and it will be subtracted in the next years to come. So हम बोल रहे थे -60 का लॉस accumulate हो गया. Answer is 60, 20, 20, dash and dash, 20, 20, 60, 60. Is it 0 now? Yes, sir. So can I start charging a tax now? And this is the basic fund of why government charges tax from us. This is the very basic funda. In fact, we go and tell somebody ना कि why does government collect tax? हमारे पास reason ही नहीं होता.
और वो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ जब से हम लोग ने एफएम स्टार्ट किया, कि टैक्स ना, गवर्नमेंट चार्जेस अ कॉर्पोरेट टैक्स विद द फंडा टेलिंग दैट बॉस आई एम द पार्टनर ऑफ द बिजनेस. And definitely we do and question him कि how can you become a partner? You have not given any money. Equity share, I have given the money. Debentures, I have given the money. Government ने कौन सा पैसा दिया है? Resources, infra. और वो यही पार्टनरशिप का अपने से क्या मांग रहा है? टैक्स. अरे तो पार्टनरशिप पूरा निभाए ना. मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि जिस दिन प्रॉफिट होता है तो वो अपने से टैक्स मांगता है, तो जिस दिन लॉस होगा तो हम टैक्स मांगेंगे उससे. सिंपल ना. तो या तो बेनिफिट उसी साल में लो, अगर बेनिफिट उस साल नहीं मिल रहा है तो आप उसी लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर दो. ये कौन सा रूल है? वो सब अपने स्कूलिंग लेवल की बात हो गई. सर इधर टैक्स नहीं भरेंगे बिकॉज लॉस है, फिर 20 का प्रॉफिट हुआ तो सीधा टैक्स भरने लगेंगे. भाई पहले का लॉस कौन भरेगा? Yes or no? If you are taking tax on the profit, you should be eligible to pay tax on loss. So the benefit is carried forward. And did you understand the calculations? Take it ahead. 120. Is it 60? 200. 100? 150? 200. क्या ऐड करना है मुझे इसमें? सिर्फ मैंने फिर से डेप्री का कॉलम नहीं बनाया बिकॉज कॉलम ऑलरेडी रेडी था. कैन आई से आई विल ऐड 30 एंड फाइंड द CF? चलो 60. CF कितना? -30 plus 10, 30, 50, 90, 80, 90 again. Am I correct? 130, 180, 230. और इसको किससे मल्टीप्लाई करें हम? आंसर्स आपके सामने. चलो फैक्टर्स एंड गिव मी द आंसर. -20. Next one. 7 point. Next. 19.8. Next. 28 point. शुभम आप लिखेंगे नहीं एटलीस्ट. 40. Next. 34.4. Next. 34.22. Only 2. Okay. 48.9, 42.9. 42.9. 50.4. 57.5. 57.5. Can you give me the total of all this? How much? 294.2. Have you subtracted the first one? Sure? Okay. Done? ये क्या मिला हमें? वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज रिकरिंग इनफ्लोज इन केस ऑफ फॉरवर्ड एरिया. 294 रिकरिंग इनफ्लो. वर्किंग नोट नंबर 1 294.2. इज इट करेक्ट? वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए? और ये सिर्फ मैंने फॉरवर्ड एरिया का किया है. मैं फॉरवर्ड एरिया पे काम कर रहा हूँ, बैकवर्ड एरिया पे बाद में जाता हूँ. इज इट सैल्वेज वैल्यू? व्हाट इज द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द असेट? 30. व्हाट इज WDV ऑफ द असेट? 30. Because depreciation was charged by what? SLM. If the depreciation would have been charged by WDV, I hope you are very clear with the word salvage then. Because उस पे क्या देखना पड़ेगा? Profit loss, that is capital gain और capital loss, और उसका क्या देखना पड़ेगा हमें? Tax effect. So यहाँ पे कुछ नहीं हमारे पास. 30 and 30, this is gone. But this 30 will come when? After 10 years. 10th year का factor 0.25. 7.5 is the salvage value. 7.5 is the salvage value, and I guess salvage value will not change if you are in forward area or if you are in backward area. Yes or no? No, it is. At the last paragraph, the annual depreciation may be taken at 30. So अगर हम 30 बोलेंगे तो 10 साल का डेप्री कितना हो गया? 300. Cost of the asset was 330. That is the WDV, no? I didn't get you. That is WDV. हाँ. So salvage is assumed to be the WDV. Always ना SLM है. What is the basic fund of SLM method? Cost price minus the scrap value. तो वो जो scrap value होता है वही हमारे लिए scrap value बनेगा ना, और वही WDV आएगा. That's a basic premise of SLM method. Confusion कहाँ पे आपको? I didn't think of the formula.
अच्छा, you didn't think of the formula. Do you want me to elaborate on that? Okay. Can we go ahead? Next. और मैं क्या बोल रहा था, ये salvage value 7.5 and 7.5 यहीं पे रहेगा ना, उसमें कोई फर्क नहीं होगा. सब्सिडी, कौन से एरिया में सब्सिडी मिल रहा है हमें? बैकवर्ड एरिया. आर वी गेटिंग इट टुडे और दे आर टेलिंग यू आफ्टर इयर्स और सो दिस एंड दैट? नथिंग, प्योरली ना, खाली कैश सब्सिडी बोला है. सो हाउ मच इज दैट? 15. बैकवर्ड एरिया, फॉरवर्ड में कुछ नहीं. टोटल 294.2 प्लस 7.5, 301 पॉइंट. कॉस्ट ऑफ द एसेट 130. कॉस्ट ऑफ द एसेट 130. और अगर 330 भी दिखाना ना तो सिंपल कॉन्सेप्ट सोचो कि अगर तुम 330 दिखाओगे तो लोन आया वो इनफ्लो दिखाओ. मतलब ऊपर क्या दिखाऊंगा मैं? लोन. कितने का लोन आया? 200. और फिर 330 दिखाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. बट आई वॉन्ट टू ड्रिल इन दैट पार्ट बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट. दे आर सेइंग बोरोड फंड्स कॉन्सेप्ट से नहीं जाना है, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है. तो इक्विटी वालों को कितना पैसा जा रहा है प्रोजेक्ट में? सिर्फ 130. Are we clear with that one? Continuation of that. Repayment of what? Working note number 3. Repayment of loan. Repayment of loan. Tell me now, what is repayment of loan यहाँ पे? 50 at the end of 4, 5, 6, 7. And is it 50 all throughout? Can I multiply 50 by cumulative factor of 4, 5, 6, 7? Cumulative factor निकालो. 50 into 1.88. ब्रैकेट में लिख रहा हूं, दिस इज क्यूमुलेटिव फैक्टर फॉर 4, 5, 6 एंड 7. आंसर कितना? 90. चलो 94. 301 माइनस 130 माइनस 94. माइनस 130 माइनस 94. 77.7 क्या मिला हम लोग को? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. इज इट क्लियर? कौन से एरिया का? अभी वैसे ही किसका निकालना है? और बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कंपेयर करके उनको डिसाइड करके देना है कि कहाँ पे लोकेट करें. इज इट क्लियर? बट ये कैलकुलेशन और भी अच्छा है बैकवर्ड एरिया में, बिकॉज एक और स्टेटमेंट है बैकवर्ड एरिया में. रीड दैट स्टेटमेंट. Locating in backward area has a cash subsidy of 15 lakh from the central government. Besides, the taxable profit to the extent of 20% is exempt for what? मतलब taxable profit पे exemption भी मिलने वाला है अपने को 10 years के लिए. मजा आएगी कैलकुलेशन करने के लिए. इतना कॉपी कर लो, फिर यही टेबल वापस बनाते हैं बैकवर्ड के लिए.
ऑफ कोर्स पहले से आप 20% नेगेट नहीं करने लगेंगे, जो मतलब टैक्सेबल आएगा वहीं से बेनिफिट होगा। Is it done? Can I rub this part? टाइटल पे लिखो, वर्किंग नोट नंबर 4 पे जा सकते हैं हम, रिकरिंग इनफ्लोज फॉर बैकवर्ड एरिया। Can I start working? How many years again? 10 years. Can we do it together this time? चलो NPBDT first year -50 -20 10 20 45 yes next that for 10 is positive na for the third year. अच्छा लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंटरेस्ट इज चेंजिंग ना, कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला अभी उन्होंने बैकवर्ड एरिया में? 10%। 200 का 10%, रीपेमेंट सेम रह रहा है तो 20 20 20 20 आई गेस 15 10 5 एंड नील। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पहले 200 पे परसेंटेज निकाला है, फिर 150, फिर 100 एंड फिर 50। Next one, depre 30 all the way. So we have 30 for all the years. $30 for all 10 years. Now be careful with the calculation. BT क्या आएगा फर्स्ट ईयर का? -100 ना? -100 second, -70 third, -40 fourth, -30 nil 60 120 160 200 300। टैक्स का कैलकुलेशन साथ में करते हैं। फर्स्ट वन -100 कंटिन्यू, और आप अपने कैलकुलेशन साथ में करो अभी। -100 आई गेस वी हैव रीच टू -170 -210 -240 कंटिन्यू एट -240 -180 -180 ना, साथ में कर रहे हो। उसके बाद -60, उसके बाद नाउ सी द कैलकुलेशन ना। कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग? ये 8th ईयर। 2 minutes, गिव मी 2 minutes एंड हैव अ लुक एट द कैलकुलेशन। इज इट 160 का प्रॉफिट? तो 160 माइनस कितने का लॉस कैरी फॉरवर्ड है अभी भी? 60। सो हाउ मच इज द टैक्सेबल प्रॉफिट? 100 पे अपने को 20% एग्जाम्पशन मिलने वाला है, मतलब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 80%, और उस पर टैक्स कितना लगेगा अपने को? सो इंटू 50%।
This is the tax for that year and the amount is how much? 40. So tax of 40 and your answer will come to what? 120. 2 minutes if anybody is missing the bus on this. First one, minus 100, minus 170, minus 210, minus 240, 180, 60. 60 का लॉस अभी भी बाकी है और अब हम आ गए 160 पे, तो 160 से 60 नेगेट कर दिया, बचा कितना? 100. 100 इज अ टैक्सेबल प्रॉफिट. डोंट टेक अ सिली एरर ऑफ टेकिंग इट हियर. यहाँ से 20% एग्जाम्पशन मत लेने लगना, यहीं पे आएगा वो. सो 100 पे अपने को 20% एग्जाम्पशन मतलब 80% इज टैक्सेबल नाउ. और वो 80% का कितना परसेंट टैक्स? सो द टैक्स कम्स टू हाउ मच? अच्छा, नेक्स्ट ईयर से 200 इंटू 80 इंटू 50%. Is it clear? Continuation. I guess it comes to 80. So 120. And last year 300 into 80%. 240 का tax कितना? 120. So answer 180. Second बराबर है ना? Yes. ऑलवेज ना. इंटरेस्ट रेट बदल रहा है ना, और कुछ नहीं बदल रहा है. डिस्काउंटिंग तो पूरा इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. केबल का उस दिन का क्वेश्चन ही अभी तक कंटिन्यू हो रहा है. जब हम लोन और उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 10% से काम करेंगे, पर जब हम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पे आ जाएंगे तो कौन से फंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं उसके हिसाब से करेंगे. परफेक्ट है. CF कितना? -70, -40, -10, nil, 30, 90, 150, 150, 150, 210. Am I correct in the calculations? DCF calculations. First one, -70 into the factor. 60.9 minus 30.4, 6.6, 0, 15, very good. Next, 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 total 150, 56.8. कोई रॉन्ग है? नहीं ना. कैलकुलेटर है वो. उसका हो गया होगा एक्चुअली. There was a guy in Opera House. I used to go to Opera House to take a batch. And that guy literally, he used to come before the lecture and he always used to ask me, आज कौन सा क्वेश्चन कराने वाले हो? और लेक्चर में जाएंगे ना तो if I am starting with 1, he'll be at 3 or 4. And after 1 hour he's done with everything. मैं घूम के आता हूँ. We cannot tell him no also. And tragedy, I'll tell you, IPCC की बात कर रहा हूँ. 7 papers, 6 papers exemption and IIT में 38. Seriously. All 6 papers exemption, huh? All 6 papers. No, he used to come and ask me also in accounts, कि सर कौन सा बुक. तो मैं उसको बोला ये TS गरेवाल ले ले. पूरा TS गरेवाल छाप दिया उसने. मतलब 1 महीने के अंदर तो पूरा अकाउंट्स का बुक हो गया उसका. And he'll just come up with the doubts. He solved entire like 1,000-2,000 पेज का पूरा अकाउंट्स का बुक. FMA पढ़ो, वो पढ़ो, सब खत्म होने का. Exemption in all 6 papers. He's completed and he was doing CA, CS and ICW all together. Last year only he completed his finals. He has done all 3 of them. But इतना बुरा लगता है ना कि रैंकिंग मिस हो जाएगी. All 6 papers exemption is some similar to rank. Correct है? चलो post it 156.8.
Project cost will not change, repayment of borrowing will not change. 156.8 plus 7.5 plus 15. 1? Huh? 0.2. 3. Minus? Minus, na? 44.7 negative. So I guess it is better to have it in forward area. Next line, the last line, write and advise. It is advisable to set up the project in the forward area. It is advisable to set up the project in the forward area. Are we clear with that?